this class for their small children, but then they realized that this class is also meant for themselves too. So when I started asking earlier, why do you want to join this class? क्योंकि मुझे मेरे बच्चे में संस्कृति जगानी है. बाद में पता चला संस्कृति हम में भी जगनी है. So yes, that is how I started too. I thought I will. All the Sanskrit has to be given to my children. I don't need anything. Then when I came to the class and when my Shiksha Guru started speaking, then I realized, अरे बाप रे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता. So yes, 4 weeks क्या हुआ? थोड़ा आगे आगे आ जाएं. थोड़ा प्रभु जी थोड़ा आगे आगे आ जाओ. पीछे थोड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ है ना. हाँ. तो कौन बताएगा कि मैं जब भी गया तो फर्स्ट वीक में क्या हुआ? आई थिंक ओजस्वी दास केम, ओजस प्रभु केम. सो आई कैन टेल यू दैट दोज द प्रभुजीज हु केम आर very senior devotees from the Melbourne Temple congregation, and they are all my Shiksha Gurus. So we have various types of teachers, right? So and in a spiritual perspective, we have various gurus. So one is Diksha Guru, who gives you the Mahamantra, the Diksha, and then there are various Shiksha Gurus from whom we learn. Like in how from our school times, for a kindergarten we had a separate teacher, and then for primary school we had separate teachers who used to come and go. There used to be one class teacher, and then secondary, then we had separate teachers. So all these teachers that come into various phases of our life are Shiksha Gurus. So Shiksha Gurus can be many. Diksha Guru is only one, the one who gives you the Diksha. Okay, so I was talking about Shiksha Gurus. So Ojasvi Prabhuji and Shri Madhvananda Das Prabhuji. Okay, two of these exalted devotees from our Melbourne congregation, they are my Shiksha Gurus too. So when I was going away, I was thinking, I discussed with them, and they said, no problem, we will conduct the classes for you. All right. So I hope you had a enlightening experience, because when someone speaks about Krishna, or when someone speaks about bhakti, it is primarily reflected in the practice that they have. Okay. So sadhana, bhakti, a class can only go that much higher to the level or to the degree that the person is practicing that sadhana. So both Madhvanand Prabhu and both Ojasvi Das, they have impeccable record of practicing Krishna consciousness. Okay. So एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान. ज्ञान is knowledge, but when you put that knowledge into practice, then that becomes Vigyan. Okay, so what you heard from Ojasvi Das and Madhvan Prabhu, both is Vigyan. They are practicing devotees, and they are very serious practitioners. When I say they are very serious practitioners, means Madhvan Prabhu every day gives a class morning at 5:30. Okay, so he gives it online, and he has a group of people who join online every day 5:30. So for that 5:30 class, he has to wake up at 4:30. So he has to do his own sadhana, then he has to read, and then he will give that class. Every day 5:30, no matter Sunday or Monday, every day 5:30 the class is on. So those kind of people, that the practice is very serious. Okay. Same with Ojasvi Das also. Ojasvi Prabhu is a specialized Mangala Arati person. Mangala Arati means at 4:30 am the first darshan in the temple opens. So he is there every day for Mangala Arati. Okay. Every day. So now, for instance, when I go here from tonight, it's going to be 11:30, 12 by the time I reach home. Ojasvi Prabhu also does that class, 11:30, 12. But tomorrow morning, 4:30 is there. That is absent in my case. So I have to work on that. Okay. But 4:30 tomorrow morning, he will be there. Okay. So yes, tell me though. So first class of Ojasvi Das, what was covered? That way I can plan my next classes. Prakriti. Huh? He covered Prakriti. The 3 modes of Prakriti and the 3 modes of material nature. Prakriti के 3 गुण. कौन से 3 गुण हैं वो? सत्व गुण, रजोगुण, तमो. सत्व गुण मीन्स मोड ऑफ, इंग्लिश में क्या नाम है? मोड ऑफ गुडनेस. सत्व गुण. रजोगुण मीन्स मोड ऑफ पैशन, and tamogun is
मोड ऑफ इग्नोरेंस। हाँ, तो ये गुण क्या है फिर, ये क्या है? क्वालिटीज बता रहे हैं इंडिविजुअल लोगों की, ये क्या है ये गुण? States. Traits, हाँ, qualities of people, and as well time as well. As the time progresses, like in the early morning it's sattvic, then as the day progresses it's more classic, and night it's a tamo. इस तमोगुण। अच्छा, सो व्हाट वी आर सेइंग इज, व्हाट वी हैव लर्नड इज, एक दिन में अलग अलग गुण अलग अलग समय पे आते हैं। हाँ, And same So- with the people as well, depending on the अच्छा। their qualities. तो गुण सिर्फ दिन में ही नहीं अलग अलग टाइम पे आते हैं, इंसानों में भी वही गुण अलग अलग समय पे है। कि कोई ऐसे बोल सकते कि कोई स्पेशली रजोगुण वाला ही है, कि कोई तामसिक में ही है, कि They कोई are more पैशन। enhanced, I think, more enhanced. That is what I perceive. But there is a quality in the people as well, like who is more of sattvic nature, who is more of tamo nature. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हर व्यक्ति में, एवरी पर्सन हैज ऑल दीज थ्री गुण्स, बट प्रीडोमिनेंटली देर इज वन गुण which is dominant in that person's personality. हाँ, ऐसा बोल सकते हैं? Yeah, is this what you learned? No, In- the other thing we learned is, of course, we have these three different gunas, right? And Yeah. going to Sattva Guna is the most, the practical way of sort of being more towards. Sattva guna is more conducive towards bhakti, did you say? But at the end of the day, I think we also learned that it is important for us to move towards more of the Krishna consciousness, because that's beyond it. So which guna is Krishna consciousness guna? Above Sattva Guna. Above Sattva Guna. So above sattva guna. So there are three guns, there are three types of personalities, if you like, but we started with prakriti. So ये गुना और प्रकृति का क्या, what is the connection between the guna and prakriti? Prakriti is material. And Material nature. natures of the material. So material nature has these three modes. This is what we learned, because there are very new many new people here. So I'm just trying to understand and revise so that everyone jumps on board and probably grasps little bit out of it, if not all. Okay. अच्छा, ये गुण के बारे में आप लोगों ने सीखा फर्स्ट क्लास में ओजस्वी दास में, थ्री गुणाज में। And so and what this Mataji mentioned was also that Shruti, what is it? Shruti, yeah, what Shruti mentioned was also that कि these three modes are dominant in all of us at different times. Different people have different modes, but for bhakti we need to rise above these three modes. Is that right? Is that what you have learned? Huh? And what is the launching pad to rise, jumping pad? सात्विकता, सत्व गुण। हाँ, जब भी भाग के जाते, जब भी हम फ्रीवे पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, रैंप होता है ना, तो रैंप में स्पीड पकड़ते हैं ना, तो दैट सत्व गुणा इज दैट रैंप टू लॉन्च अवर सेल्व्स इन भक्ति। हाँ, तो सत्व गुण मतलब क्या है फिर? हाँ, तो लेट्स देन डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ सत्व गुण, बिकॉज आई वांट टू लिंक दैट टू द पुरुषोत्तम मन। क्या है? हाँ, सॉफ्ट नेचर। People who like to rise in the morning. हाँ, so सत्वगुण qualities means people who early risers. हाँ, फूड, आहार में, Sweet and fresh food. हाँ, कि they are mostly vegetarian, सात्विक आहार जो खाते हैं। सात्विक आहार का vegetarian is different and सात्विक आहार is different. So because I have just been to वृंदावन में हर जगह मैक्सिमम सात्विक आहार होता है। तो कोई भी मंदिर के 10-15 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में जाएंगे तो कहीं भी प्याज लहसुन के बिना मिलेगा नहीं, मतलब कि उसके बिना ही मिलेगा फूड। दैट इज सात्विक आहार। ओके, सो डिड यू ऑल डिस्कस और डिड राधा ओजस्वी प्रभु डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट? अच्छा, नहीं आया उसके कि ऐसा नहीं। हाँ, कि ओके, डाइट। सो ओके, नो प्रॉब्लम। सो सात्विकता एक है। तो बंदा सात्विक कब बनेगा? जब भी आहार शुद्ध होगा तो सात्विक बनेगा। हाँ, राइट। तो शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार will lead towards sattvikta, and once we are in that sattvic frame of mind, then we can go towards something which is beyond this material prakriti, है ना? Bhakti is beyond this prakriti, right? So that is our aim, and to go beyond हमें वो launching pad चाहिए। तो basically what we have to do in our day to day lives is
टू कम ऑन टू दैट लॉन्चिंग पैड, जहाँ से हम अपने आप को लॉन्च कर सके, हम अपने बच्चों को भी लॉन्च कर सके, हम अपने परिवार वालों को भी लॉन्च कर सके ना. हमको अकेले आगे नहीं बढ़ना है ना, साथ में बढ़ना है, राइट. All right, that's good. So that's the point that we are making. Conclusion from the first class is that we all have to come to a platform of सत्व गुण. हाँ, सात्विकता अपने जीवन में हमारे को कुछ स्टेप्स लेके इम्प्लीमेंट करनी है, जिससे भक्ति का मार्ग सरल हो जाए. या माता, यू आर गेटिंग लिटिल बिट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इन हिंदी. या so सात्विकता, so by being in that sattva gun, our progress, our journey to implement this bhakti will be very, very favorable. That is the launching pad. Okay. All right. Second class में क्या हुआ? Ojasvi Prabhu, I think, continued the second class. Huh? He continued with 3 modes. Yeah, he continues He with con- Prakriti. With Prakriti only. Okay. क्या है वो? Can you little bit elaborate? Vertical and horizontal. किसका किसके साथ relationship? Like vertical, we have the relationship with Lord, हाँ. Ishwara Krishna, and horizontal family, friends, material. Yeah. We have to have a balance between both, which is very, very important, because we all are grihasthas. We are primarily householders, so we have various responsibilities towards our very close family members, and then towards distant family members, and then we also have responsibilities spiritually to educate our children, right? Okay, that's a very good point. और क्या second class में? Importance of kala. अच्छा, टाइम भी कवर हो गया. सो प्रकृति भी कवर हुआ, टाइम भी कवर. सो टाइम में व्हाट डिड वी लर्न? व्हाट इज टाइम? It is the most precious gift that we can give to somebody. But okay, that's good. But did we learn anything from a time perspective of how time works in this material nature? वो देखा कि नहीं? So that way I will know what to plan to my next class. No problem. That is fine, because I think time is a big topic. You may have not covered completely. Huh? So I understand. Okay. So I understand time उन्होंने modes of material nature के relation में cover किया होगा. All right, that's good. Anyone else has to make any point with what Ojasvi Das covered? I think he said if you do 1% degree of chanting every week, then in 2 years you will learn everything around Bhagavad Gita and stuff. So that's where he said around time, and then he said around 5 ways of recovery, acceptance, and all of that in relationship. Advice, avoid, and accept. Can you repeat that little bit loudly, Mataji? Accept the situation that we are already sick. We need to accept that. Yeah. And approach. We need to approach the temple or the. So we need to accept the situation that we are in. Then we need to approach for help, and And we need to take the advice. then take up. When we approach, then we also implement the advice. Yeah, and And we need to avoid harmful things like wasting time as well. avoid wasting of time. And the last A, Accept positive Accept positive engagement. engagement. accept positive engagement. All right, that's very nice. Yes. All right. Anybody else has any points that they noted? And there are 2 kinds of knowledge, in the heart and in the head. The head knowledge is kind of hard shell, and the heart knowledge is soft. And the more we make our knowledge soft, it's better to go to Krishna consciousness. Okay. We are more closer to Krishna because Krishna likes what I soft as he likes. People Yeah. with a soft heart. Yes. And this is the one way we can go close to God. So what I derived out of what you all said is that we all learned in our classes earlier that Krishna lives in our heart in the form of Paramatma, right? So if he lives in our heart in the form of Paramatma, then our heart better be a nice clear place to live in. Na? But then what are the 5 problems we have within us? पागलपन क्या है? P for, so we'll just revise for the new people. Na? So we have an acronym, Pagal, P-A-G-A-L-K-E-L-A. So P for pride. So we are now talking about the issues that we have in our heart. So P for pride है, और A for anger है, G for
ग्रीड है, हाँ। फिर ए फॉर ई फॉर, तो बी PAGEL है, हाँ। तो ई फॉर एनवी है, हाँ, और एल फॉर लस्ट है। सो ये पागलपन जो है वो हार्ट से क्लियर करना है, देन कृष्णा विल स्टे। सो दैट इज व्हाट, देन यू नो, so that is what I'm gathering. Okay, nice, all right. So that's for Ojas Prabhu. Then the third class, Madhvanand Das Prabhu came. Yeah, Madhvanand Prabhu came. So he's a Bhagavatam, Srimad Bhagavatam speaker in the temple. Okay, so every morning in the temple there is a Srimad Bhagavatam class. So he's one of those speakers, and he has conducted many such programs. So he's probably into his 4th or 5th program of such. I'm doing my 2nd program of this way, right? He has done many such programs, and his the group from what he has preached, they have taken initiations, they have done quite a few things. Okay, so yes, what did Madhavanand Prabhu do? Huh? Karma. अरे वाह, जबरदस्त टॉपिक, हाँ। कर्मा इज अ वेरी वेरी इंटरेक्टिव टॉपिक। तो थर्ड क्लास ही डिड कर्मा। 4th क्लास में क्या हुआ? काल, अहम कालोस्मी, टाइम। तो देन व्हाट डिड ही कवर इन टाइम? ओके, कर्मा, लेट्स स्टिक ऑन कर्मा। तो कर्मा में सो व्हाट इज कर्मा देन? हु कैन गिव अ जिस्ट? one at a time, हाँ, one at a, you can raise your hand, that way I will know who to speak. मैं उधर देखता हूँ, सडनली इधर से हो जाता है। no, not you. So yes, Shruti. So the definition of karma, basically we started with the framework. What is the basic framework to refer to? And so he taught about the Bhagavad Gita. People like us who, Yeah. we always question and analyze, and Yes. this is a topic or definition that can go beyond. So the basic way to start is to have that as a framework. Framework, okay, nice. So how many types of karmas are there? हाँ, yes sir, you tell me. 3 types of कर्मा। कौन से 3 टाइप है? कर्मा, विकर्मा और अकर्मा। तो कर्मा मतलब क्या? यहाँ पे कौन बताएगा? कर्मा मतलब क्या? हाँ, यहाँ पे कौन बताएगा? ये साइड में, हाँ जी, हाँ, एक्शन। ऐसा बोलते हैं कि एक्शन टेक 1, नहीं? जो भी कर्म हम कर रहे हैं, good or bad, they are like we do something bad, then तो कर्मा मतलब गुड करो बैड करो, उसको कर्मा बोलते हैं, ऐसा? हाँ, गुड एक्टिविटीज, गुड एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर इज कॉल्ड कर्मा। अच्छा, फिर विकर्मा क्या होता है? यहाँ से कौन बताएगा विकर्मा क्या होता है? यू टेल मी, विकर्मा। Karma which is not as per the scriptures. Karma, okay, so he said karma is something which is as per the scriptures. You are saying now karma is an activity which is not in line with the scripture. Okay, then what is vikarma? Vikarma is just what I just said. You said vikarma. Okay, so karma, you agree karma is something which is in line with scriptures? There are या मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। So हाँ? first we started with karma as any action, and then we divided karma into 2 again. Okay. Vikarma and karma again. हाँ. Vikarma is that karma which is not in accordance to the scripture. मतलब सिंपल बोलते हैं विकर्मा इज बैड एक्टिविटी, Bad activity. और कर्मा गुड एक्टिविटी। But binding. नहीं, अभी सिर्फ सिंपल डेफिनेशन, कर्मा इज विकर्मा इज बैड एक्टिविटी, कर्मा इज गुड एक्टिविटी। और ये अकर्मा क्या है फिर? हाँ, ये मैं सिंपल आदमी, मेरे को सिंपल इसमें समझाओ। अभी नए नए लोग आए, सिंपल इसमें समझाओ। Karma is karma without attachment to, without attachment, without any intention. So it's So there are 3 things. Karma है, karma is an activity, positive activity. Vikarma is a negative activity, and then there is something called as akarma. What is akarma? Okay, so what we are saying is हमारे पास 2 pots है, 2 घड़े हैं। एनी टाइम आई डू समथिंग गुड, लेट्स से आई, कौन बताएगा गुड एक्टिविटी का डेफिनेशन? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ गुड एक्टिविटी? हाँ, चैरिटी। तो मैंने 10 साधुओं को बिठा के भोजन खिलवाया, गुड एक्टिविटी, राइट? तो गुड एक्टिविटी का एक पॉट इमेजिन कीजिए, यहाँ पे घड़ा, उसमें मैंने 10 पॉइंट्स डाल दिए,
मेरे 10 रुपये उसके अंदर जमा हो गया। एक बैड एक्टिविटी का घड़ा है, मैंने उनको तो खिला दिया बट चोरी का माल मैंने लेके उनको खिलाया। आई जस्ट रॉब समथिंग, सो दैट इज़ अ बैड एक्टिविटी। तो बैड एक्टिविटी का बैड वाले घड़े में -10, इधर +10 इधर -10। अच्छा, नाउ क्वेश्चन टू यू इज, जो मैंने बुरे पैसे लिए थे चोरी करके, दैट मनी दैट आई हैड रॉब्ड and I utilized it to build some ashram. Okay, so now will the good activity that I did using the bad money, will it cancel this +10 -10? cancel हो जाएगा? No. How many people say no और how many people say yes? Okay, उल्टा बोलता, how many people agree कि cancel हो जाएगा ना, अच्छा तो किया ना? How many people? No one says yes. सबको पता है। अच्छा, so we all agree that if we do something bad we will get a bad reaction, and for good it is a good reaction. The good reaction doesn't cancel the bad reaction, है ना? तो दोनों घड़े भरे हुए रहेंगे। और जब तक ये दोनों घड़े भरे हुए हैं, we cannot get out of this cycle of repeated birth and death. We all agree this part. तो ये दोनों को खाली कैसे करना है? अकर्मा करके। So now should I not give that donation to the 10 sadhus that I gave? You should give, but you can should give not it, but expect then anything back continue from it. chanting and devotional service as well at the same time, so that you don't get attached to it, the result of goodness. So what we are saying is, akarma is an activity which is similar to karma, which is similar to that positive activity, but with a different frame of mind. Is it? Intention. With a different intention? With no intention. There is no have any desires. Or how? What if I say that intention is to please God? Yeah? That can be there. Yeah. So which means I can have an intention. The intention is to please God, but the intention is not to have fame or get any recognition in return for it. Yeah. So what we are basically saying is कि हम मना नहीं कर रहे हैं आश्रम बांधो, हम मना नहीं कर रहे हैं कि तुम लंगर लगाओ ना, तुम भोजन परोसो, बट डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से। अगर वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड इफ यू डोंट यूज, देन वी विल बेसिकली कलेक्ट पॉजिटिव ब्राउनी पॉइंट्स. For that positive brownie points, we again have to come to this earth and we again have to exhaust that thing. And till the time we don't exhaust, we won't be able to get out of this cycle, right? Okay. Right. So this is in short definition. Are you getting it? What we are saying? Yeah. Because these people have a lot of background now, because we have been meeting since 3 months now, or maybe a little bit more. Many people are new today, but this is the most easiest way I can explain in this short time. Okay. So that is karma. So Bhagavad Gita has 5 main subjects that are covered. What are those 5 subjects? Jiva. So one at a time. So Jiva means who am I? फिर second Ishvara. So who am I? So we have to go in a sequence. So who am I? And then who is God? ये second cover होता है aspect. Third, प्रकृति. What is material nature? This is where we discuss कि material nature में 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण. Okay. So Jiva, Ishvara, Prakriti. 4th is Karma. So we discussed Karma now. And 5th is Kala, time. Okay. Yes. ये 5 में से what is not in our control? Only one is in our control. Nothing. 4 of them are within control. Only karma. It was a trick question. What is not in our control? Nothing is in our control except the actions that we do. है ना? Except the actions that we do, nothing is in our control. हाँ? हम खाली आए थे, खाली जाएंगे. True or false? How many say true? हम खाली आए थे, खाली जाएंगे. मैं पूरा बोला, खाली आए थे, खाली. I'm not dissecting it. खाली आए थे, खाली जाएंगे. True or false? False. अभी थोड़ी देर पहले सब लोग true बोल रहे थे. हाँ? दूसरी बार क्वेश्चन पूछा तो चेंज हो गया. हाँ?
अभी ठीक ठीक बताओ, ट्रू है क्या फॉल्स है? सब बोल रहे हैं फॉल्स। तो मुझे समझाओ व्हाट इज फॉल्स इन दिस, व्हाट इज फॉल्स? We already come with some baggage. MB. वी केम विथ सम बैगेज, The past karma. हाँ Past so Past हाँ, so all accountants will understand that बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया पीछे से, और यहाँ से आगे जाएगा उसको क्या बोलते हैं? नहीं, पिछले से आएगा तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड। तो व्हाट इज दैट ब्रॉट फॉरवर्ड थिंग? MBA. Manudhya. Correct, yes. So every time we finish with this lifetime, when we go to a new body, because we are all from a Vedic background, Hindu background, so we know there is life after death. नया एक शरीर मिलने वाला है. So every time we go to a new body, our atma transmigrates from this old body to a new body. But along with the atma, there are three things that go with the atma. What is that acronym? MBA हमने बोला था, मन, बुद्धि, अहंकार. मन, बुद्धि, अहंकार को लेके ये बैगेज है. सो हम खाली हाथ नहीं आए थे. पैसों के मामले में बोल सकते हो हम खाली आए थे, बट वो भी नहीं बोल सकते हो. मन, बुद्धि, अहंकार है ना, वॉट एवर यू आर, दोज टू पॉट्स दैट यू हैव कलेक्टेड, गुड एंड बैड. इफ योर गुड इज गुड, अच्छे से भरा हुआ है, तो पैसा भी आप लेके आते हो आप अपने साथ. देन यू गेट बॉर्न इन अंबानी फैमिली वेर यू डोंट हैव टू थिंक कि क्या है. एंड देन इफ देर इज अ प्रॉब्लम, and if you are that black pot is too much, तो you get born into a beggar's family where you अगला खाना कहाँ से आने वाले पता नहीं है. हाँ, so same people born on the same day in two different families. How does that happen? मन, बुद्धि, अहंकार, हमारे previous action से हमने खुद ही बनाया सब कुछ. So if something is going is wrong in my life, who is responsible for it? I am responsible. बट मेरा सारा जन्म तो अच्छे, मैंने चींटी को भी नहीं मारा था, फिर भी मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? पिछले जन्म में मैंने बहुत कांड किए थे, राइट? पिछले जन्म में बहुत कांड, अभी तो नहीं दिख रहा है. हाँ, ओके. सो नाउ वी अंडरस्टैंड द कर्मा पार्ट. ओके, सो टू गेट आउट ऑफ दिस लाइफ साइकिल, हमारे को पागलपन कम करना है. पागलपन कम करने के लिए वी हैव टू डू साधना. कलयुगा में द साधना इज चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्रा. ओके, सो व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन. सो फॉर कलयुगा, आवर आचार्यस, लॉट्स ऑफ साधुस, लॉट्स ऑफ सेंट्स हैव प्रिस्क्राइब्ड दिस मेडिसिन ऑफ हरि नाम, हरि संकीर्तन. वेरियस मंत्रास है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सतयुग का मंत्र है. फिर अलग अलग मंत्र है, वो भी मंत्र कर सकते हैं. But what is the specialized mantra for this Kaliyug is the Hare Krishna Maha Mantra, and that is why we focus on this particular mantra. Okay, so this is how we end this cycle of birth and death, and we create space in our heart so that Lord can come and reside in our heart, and then He can guide us. Okay, so it is not an easy process. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. साधना करनी पड़ती है, एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है, सत्व गुण में आना है, सुबह जल्दी उठना है, खाने में चेंजेस करने हैं. देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन. बट समटाइम्स दिवाली में बम्पर ऑफर होता है ना, शॉपिंग का 50% डिस्काउंट, वैसा बम्पर ऑफर अभी चल रहा है. इट इज़ कॉल्ड एज द पुरुषोत्तम मंथ. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर. वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट इज पुरुषोत्तम मंथ. पुरुषोत्तम मंथ को बोलते हैं अधिक मास भी बोलते हैं. ओके, अधिक मास, या कुछ लोग बोलते हैं मलमास. ओके, अधिक मास मीन्स एक्स्ट्रा मास. ओके, सो व्हेन वी नाउ लुक अप इन द स्काई, ना ऐसे बाहर जाके स्काई में देखेंगे, यू विल सी ए कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स. तो एवरी डे व्हेन यू सी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ना आज 2 स्टार दिख रहे हैं, तो कल वो 2 स्टार सेम जगह पे नहीं होंगे, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे. सो दैट कॉन्स्टेलेशन, दैट स्टार शिफ्ट्स, धीरे धीरे चेंज होता है सब कुछ. ओके, सो एंड देन देर आर वेरियस प्लैनेट्स. इसमें से 2 मेन प्लैनेट्स दैट वी कैन ईजिली सी आर द सन एंड द मून. ओके, सो टुडे इफ आई मार्क अ पॉइंट ऑन दिस स्काई, लेट्स से दिस स्काई, एंड आई मार्क अ पॉइंट ऑन दिस स्काई कि मून आज इधर है. सो एंड देन टुमारो व्हेन आई सी द मून, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा. So for that moon to come back to the same spot which I marked earlier is called as one lunar year.
मून एक पोजीशन से घूम के एक साल में फिर से वो सेम पोजीशन पे आएगा, उसको 1 लूनार ईयर बोलते हैं. सो लूनार ईयर इज ऑफ 354 पॉइंट समथिंग डेज. ओके, लूनार ईयर, हाँ, लूनार ईयर इज फ्रॉम 354 पॉइंट समथिंग डेज. ओके, वैसे ही सन को मैं आज अगर एक पॉइंट पे मार्क किया तो वापस वही पॉइंट पे सन अगर आने के लिए उसको बोलते हैं 1 सोलर ईयर. सोलर ईयर इज ऑफ 365 पॉइंट समथिंग डेज. सो लूनार और सोलर में कितना डिफरेंस हो गया? 365 माइनस 54, 11 डेज का फर्क हो गया. सो ऐसे 1 ईयर में 11 डेज का गैप हो गया. नाउ आवर वैदिक कैलेंडर इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन लूनार एंड ऑल्सो रिफर्स टू सोलर फॉर समथिंग. सो अपने वैदिक सिस्टम में लूनार और सोलर में एवरी ईयर देर इज अ 11 डे का डिफरेंस. आफ्टर 3 years देर इज अप्रोक्सीमेटली 1 month का डिफरेंस, 32-33 डेज का पॉइंट समथिंग कुछ होता है, राइट? इन शॉर्ट, कीप इट इजी. सो ये 1 month का डिफरेंस हो जाता है आफ्टर एवरी 3 years अप्रोक्सीमेटली. अगर वो डिफरेंस सही नहीं किया तो जो सारी तिथियां आ रही है, जो सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कुछ जो फेस्टिवल्स समर में आ रहे हैं वो धीरे धीरे विंटर में आना शुरू हो जाएंगे. एवरीथिंग विल गो आउट ऑफ लाइन. ओके, टू प्रिवेंट दैट दिस अधिक मास, एक्स्ट्रा मंथ, मास मतलब मंथ, दिस एक्स्ट्रा मंथ इज इंसर्टेड by our Vedic system every 3 years. Okay, you get it? Now this month is the Purushottam month which has happened just now 3 days back. 18 July से शुरू हो गया Purushottam month. Okay, so this is a extra month which is inserted. तो इस मंथ में ना कोई तिथि नहीं है क्योंकि ये it has been just inserted to balance out things. So this is not going to occur every year. तो इस मंथ में कोई तिथि नहीं है स्पेशली कि इस तिथि को, जैसे आप अगर पंडित को जाके पूछोगे कि मुझे है ना गाड़ी खरीदनी है, तो बोलेगा अभी नहीं, रुक जाओ, 25 दिन रुक जाओ. मुझे नए घर में प्रवेश करना है, नहीं रुक जाओ. शादी करनी है, नहीं, कुछ नहीं कर सकते इस मंथ में. ओके, फॉर इंस्टेंस समबडी डाइज इन दिस मंथ, तो उसकी तिथि जो अगले साल आने वाली है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी. अगले साल ये मंथ है ही नहीं. हाँ, वो है ही नहीं. तो इसको कुछ लोग मलमास बोलते हैं. मलम मीन्स गार्बेज, कि इस मंथ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसा. हाँ, so this is called from a karma kanda perspective. Karma kanda means I do some puja for some immediate benefit. हाँ, धनम देही पुत्रम देही, पुत्र कामिष्टि यज्ञ कर दिया, तो पंडित जी के पास जाएंगे, पुत्र कामिष्टि यज्ञ करना, तो नहीं, अभी तिथि नहीं है. ओके, so from a karma kanda perspective this month has 0 value. It is called mala. mala मतलब garbage. ओके, ऐसा. So basically you will hear मलमास का कोई इंडिया में है ना, कोई नॉर्थ साइड में मलमास का मेला लग रहा है, कुछ लग रहा है, नाम मलमास बोलते हैं. सो यू अंडरस्टैंड सो फार सो क्लियर कि मलमास क्यों बोलते हैं. तिथि कोई इसमें नहीं आती. बट फ्रॉम अ वैदिक परस्पेक्टिव, बट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव, दिस मंथ हैज द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ फ्रॉम अ वैदिक परस्पेक्टिव, जैसे अपने हिंदू कैलेंडर के मंथ को क्या बोलते हैं? चैत्र, आषाढ़, हाँ वो पता है ना, काय अजून काय? चैत्र, हाँ, श्रावण, भाद्रपद आणि कार्तिक. कार्तिक इज द टॉपमोस्ट मंथ, सबसे प्योर मंथ कार्तिक, सबसे स्पिरिचुअली हाई देने वाला मंथ इज कार्तिक. बट पुरुषोत्तम मंथ इज 1001 मोर टाइम्स पावरफुल देन कार्तिक. So we are now sitting on a discount offer scheme. हाँ, I'm very serious. डिस्काउंट ऑफर स्कीम में अगले 14 से 15 जुलाई अगस्त जब तक ये चलेगा, every day, every minute is a spiritually enlightening opportunity for you. Any small thing that you do from a spiritual perspective in this particular month is amplified 1000 times. Okay, so now I will so ये importance इसका है. अभी now I'm going to tell you the story of this month, Purushottam month, from our Shastras, from our Puranas, and for that I have to give you a little bit of background of Shrimad Bhagavatam. So story में story है ऐसा. हाँ, तो you have to be very focused. Okay, परीक्षित महाराज जानते हैं आप लोग सब, जिनको सर्प ने ये किया था, and he was then cursed to die in 7 days. Okay, so when that shrap occurred, then in 7 days what did परीक्षित महाराज do? उन्होंने LIC पॉलिसी निकाली, कुछ किया, सबको मैं सेटल करके जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं किया. What he did? He wanted to hear about
about Bhagavatam. He wanted to hear about Krishna. So Parikshit Maharaj went and he took instructions from Shukdev Goswami. Okay. So now if first set है कि Shukdev Goswami is a guru, he is giving instructions to Parikshit Maharaj. जैसे सामने बैठे परीक्षित महाराज, शुकदेव गोस्वामी यहाँ बैठे हैं और अन्य काफ़ी सारे साधु संत बैठे हैं, क्योंकि ज्ञान आ रहा है तो सभी लोग सुन रहे हैं, हम भी सुनेंगे. हाँ कि बट द प्राइमरी रेसिपिएंट इज परीक्षित महाराज. 7 डेज में उनको जाना है. उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है परीक्षित महाराज का कि जो आदमी शरीर छोड़ के जाने वाला है उसके लिए आप क्या गाइडेंस दे सकते हैं. एंड देन शुकदेव गोस्वामी स्टार्ट स्पीकिंग वेरियस थिंग्स. ओके, सो हु इज टॉकिंग टू हुम? Shukdev Goswami is talking to Parikshit Maharaj, and there are lot many people in the audience. Okay, one amongst those many thousands of rishis is Suta Goswami. एक है शुकदेव गोस्वामी जो व्यासासन पे बैठे परीक्षित महाराज से बात कर रहे हैं, और ऑडियंस में काफ़ी लोगों में एक सूतक गोस्वामी भी है. तो सारी जो 7 डेज में श्रीमद् भागवतम कथा होती है, परीक्षित महाराज क्वेश्चन करते हैं, शुकदेव गोस्वामी आंसर करते हैं, ये सूतक गोस्वामी भी सुन रहे. उस समय क्या होता था? पीपल यूज्ड टू हियर एंड इट वाज परमानेंटली रिकॉर्डेड. नो राइटिंग एंड मेकिंग नोट्स, परमानेंटली रिकॉर्डेड. सो दिस सूतक गोस्वामी देन ही ट्रेवल्स बैक. कथा खत्म हो गई, वो वापस जा रहे हैं. ही गोज एंड समवेयर देर इज अ प्लेस कॉल्ड नैमिषारण्य, द फॉरेस्ट ऑफ नैमिषारण्य. वहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेजेस बैठे हुए हैं. एंड दे सी सूतक गोस्वामी कमिंग एंड जैसे यू प्लीज कोई कथा करो. एंड सूतक गोस्वामी से मैं श्रीमद् भागवतम सुन के आया हूँ. किससे सुन के आया हूँ? शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज. शुकदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को कथा कर रहे थे वो मैं सुन के आया हूँ, मैं आपको भी बताऊंगा. सो अभी स्टोरी में स्टोरी. सूतक गोस्वामी इज नाउ टेलिंग टू ऑल दोज सेजेस व्हाट ही हैज हर्ड फर्स्ट हैंड फ्रॉम शुकदेव गोस्वामी टेलिंग टू परीक्षित महाराज. 2 हो गए. Now, पांडवास वर इन द फॉरेस्ट. वनवास में थे, काम्य वन में थे. तो भगवान कृष्ण पांडवास के पास गए एंड देन ही सॉ देम कि क्या दशा हो गई तुम्हारी, बहुत बुरी दशा है, आई एम फीलिंग वेरी वेरी बैड. ओके, एंड देन कृष्ण इज एडवाइजिंग युधिष्ठिर कि मैं आपको कथा बताता हूँ एक. ओके, ये थर्ड है. तो कृष्ण इज एडवाइजिंग युधिष्ठिर महाराज कि मैं आपको कथा बताता हूँ श्रीमद् भागवतम की. ओके, और ये पुरुषोत्तम मास की कथा बताता हूँ. एंड देन कृष्ण स्टार्ट स्पीकिंग टू युधिष्ठिर महाराज कि देर आर वेरियस मंथ्स, चैत्र भाद्रपद श्रावण, तो वैसे पुरुषोत्तम मास भी है. तो नाउ इन वैदिक, इन फ्रॉम अ वैदिक परस्पेक्टिव एवरीथिंग हैज़ अ प्रिसाइडिंग डीटी, एवरीथिंग इज अ पर्सनैलिटी. ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सन देखते हैं, सन प्लैनेट है, इट इज़ अ प्लैनेट बट द प्लैनेट हैज़ अ प्रिसाइडिंग डीटी सिटिंग, सम पर्सनैलिटी सिटिंग. सन की पर्सनैलिटी कौन है? विवासवान. विवासवान इज द रूलर, इज द प्रिसाइडिंग डीटी. कोई राजा बैठता है ना, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, अभी कौन बैठा है? अभी मोदी बैठा है. करेक्ट एग्जाम. हाँ नहीं ठीक है, बराबर. तो विवासवान सन, ऐसा समझो आप. ठीक है, तो एवरीथिंग हैज़ अ प्रिसाइडिंग डीटी, इज अ पर्सनैलिटी. तो जब ये पुरुषोत्तम मंथ ऑर्गेनाइज हुआ ना, तो पुरुषोत्तम मंथ की एक देवी थी, तो वो देवी ने कहा कि ये पुरुषोत्तम अधिक मास, मुझे सब मलम मास कहते हैं, मुझे कोई भी नो वन लाइक्स मी, बेसिकली एवरीवन इज हेटिंग मी, एवरीवन वांट्स टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम मी, कि आई एम जस्ट टू मच स्ट्रेस्ड. एंड दिस देवी गोज टू लॉर्ड विष्णु एंड शी आस्क फॉर हेल्प कि मुझे प्लीज़ कुछ करे. तो ये क्वेश्चन, ये कौन कथा किसको समझा रहा है? कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग टू युधिष्ठिर दैट दिस हैज हैपेंड in Srimad Bhagavatam, which was narrated by Sutta Goswami to him, and Sutta Goswami heard from Shukdev Goswami to Parikshit Maharaj. Everyone is with me. स्टोरी में स्टोरी चल रही है. हाँ, तो ऐसे तो कृष्णा इज नाउ टेलिंग स्टोरी कि ये मलमास की देवी विष्णु के पास गई प्रॉब्लम लेके. एंड देन विष्णु हर्ड द एंटायर प्रॉब्लम कि मुझे प्लीज़ हेल्प करो, मेरा तो कोई भी नहीं है, सब लोग मुझे मतलब धुतकार रहे हैं, तो यू प्लीज़ हेल्प मी. एंड देन विष्णु सेज ओके दिस इज समथिंग बियॉन्ड माई कैपेसिटी, वी विल हैव टू गो टू द हायर अथॉरिटीज़.
तो he goes to the higher authority Krishna. Okay, so we will come at a later stage कि विष्णु से कृष्ण, कृष्ण से विष्णु. For now assume Vishnu and Krishna is the same for the time being, but still Krishna has an upper hand. Okay, so ये वैकुंठ में है. So we have a Vedic cosmology. Okay, कि सारे planetary systems है और एक वैकुंठ लोक है. वैकुंठ, कुंठ means anxiety. वैकुंठ, वैकुंठ is a place where there is no anxiety. तो ये मलमास की देवी वैकुंठ में गई विष्णु से मिलने और विष्णु उसको बोल रहे कि यहाँ पे एंजाइटी नहीं होती, फिर भी तुझे इतनी एंजाइटी है, दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, लेट अस गो टू कृष्णा. कृष्णा स्टेज इन गोलोका वृंदावन, दिस इज द टॉप मोस्ट प्लैनेट इन दिस एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो गोलोका वृंदावन में कृष्ण के पास लेके जाते हैं उसको. ओके, तो कृष्ण के पास लेके जाते हैं और कृष्ण ऑल्सो सेज कि अरे यहाँ पे तो कोई गोलोका वृंदावन में रोता नहीं है, तू इतनी रो रही है, क्या प्रॉब्लम है. देन शी अगेन टेल्स एवरीथिंग कि मेरा कोई भी नहीं है, सब लोग मुझे धुतकार रहे हैं, ये मलमास तो मतलब मुझे ये हो गया, मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी. एंड एज अ लेडी शी नीड्स अ सपोर्ट, कोई हस्बैंड होना चाहिए. एंड देन लॉर्ड कृष्ण सेज नो प्रॉब्लम, फ्रॉम टुडे ऑन यू आर नॉट अलोन, आई विल टेक यू एज माई वाइफ. जो मेरा है वो सब तुम्हारा अभी. हाँ, सो व्हेन अ लेडी मैरीज अ रिच मैन, ऑटोमेटिकली ऑल द प्रॉपर्टी becomes a lady's. Everything that rich man has becomes the lady's. Correct? Same concept. कृष्णा बोलते हैं जो मेरा है, जो मेरा सारा पावर है, it is all yours now. So Krishna has invested all the powers in this Purushottam. And then Krishna says कि तुम मलमास नहीं नाम, अब से ये महीने का नाम होगा पुरुषोत्तम. I am पुरुषोत्तम, Krishna says to that Devi, to the Malmas Devi. And says अब से मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा जो भी मेरे पावर्स है सब कुछ तुम्हारा, मेरे जो वरदान देने की कैपेसिटी है वो तुम में आ गई है. सो अब से जो भी तुम्हारी साधना करेगा, पुरुषोत्तम मास का व्रत जो भी फॉलो करेगा, आई गिव हिम अ स्पेशल डिस्काउंट. ही कैन आफ्टर दैट बर्थ ही कैन कम टू गोलोका, नॉट वैकुंठ लोका. वैकुंठ लोका इज ऑल्सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट गोलोका में मेरे पास आएगा. दैट इज द बून कृष्णा गिव्स टू his wife, to this Malamas or to this Purushottam month. So I don't want to call it Malamas anymore. Now it is Purushottam month. Okay, so this is the power of Purushottam month. Okay, and Krishna also says those who don't follow this month or those who ignore or those who criticize, छोड़ेंगे नहीं, hell में जाना पड़ेगा. They will suffer. That is also there. Okay. तो स्टोरी में स्टोरी चल रही है. कृष्णा युधिष्ठिर महाराज को ये स्टोरी सुना रहे हैं कि मलमास वाली देवी विष्णु जी के पास गई, विष्णु से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो गया, कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने ब्याह रचा दिया, अभी सारे पावर्स इनके पास आ रहे हैं. अच्छा, इसमें ना एक मैं बताना भूल गया, स्टोरी में एक स्टोरी है कि नारद मुनि इज टॉकिंग टू ब्रह्मा. ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, नारद मुनि ask this question to Lord Brahma, can you please explain me the glories of Purushottam month? And then Brahma in turn tells this story of this Malmas Devi going to Vishnu and Vishnu going to this. और ये कौन स्टोरी बता रहा है? कृष्ण इज टेलिंग दिस स्टोरी टू युधिष्ठिर महाराज कि नारद मुनि ने ये क्वेश्चन पूछा था, बट बैकग्राउंड में क्या है? सूता गोस्वामी इज टॉकिंग टू द सेंट्स. सूता गोस्वामी हर्ड from Shukdev Goswami, who is telling to Parikshit Maharaj. Have I confused you successfully? Yes. Good. Okay. No problem. If you have not understood this, who said to whom? No problem. Just understand the crux that Purushottam Mass is the most important discount offer on earth available. You, by the greatest fortune that you have ever collected, you have somehow come into this remote place in Manda. And then you are here listening to this. Okay, if after this if you don't act, then God save you, because this is a discount offer चल रहा है, आपको सिर्फ वो discount offer लेना है. Okay, so now Krishna is telling to, वहाँ पे द्रौपदी भी बैठी थी कि द्रौपदी, do you know why you are suffering? तो द्रौपदी बोली no, I don't know why am I suffering, why Pandavas are suffering. Then Krishna says द्रौपदी को, स्टोरी बताता हूँ एक,
तो स्टोरी में स्टोरी चल रही है अभी. Once there was a rishi, Krishna is telling this to Draupadi and all the Pandavas. Once there was a rishi called Medhavi. Medhavi नाम के मुनि हुए, हाँ, and he had a daughter. Unfortunately, when the wife gave birth to the daughter, the wife passed away. So Medhavi rishi brought this daughter up on his own. He was a single father, but he was very much into spiritual practices. तो कभी ध्यान में नहीं आया कि बच्ची बड़ी हो रही है, इसका ब्याह भी कराना चाहिए, कुछ ऐसे, हाँ. तो उसके सारी सहेलियां का ब्याह हो गया, हाँ. ऑल द अदर maids, you know, they got married, but this daughter, she did not get married because he was never thinking about it. And suddenly this guy got old and he passed away. And so that girl is now, who is no longer in her youth, she is much more grown up and she is not married and she is left there alone. तो मेधावी ऋषि के बहुत खास फ्रेंड हुए, क्लोजेस्ट फ्रेंड दुर्वासा मुनि. Durvasa Muni once comes to Medhavi Rishi's ashram and Medhavi is no longer there. Then this daughter receives him and she does nice seva of Durvasa Muni and Durvasa Muni becomes very very happy with her seva. बोलते कि क्या चाहिए, and then she says कि for some reason this I never got married and I am now looking for a suitable, कि मेरा शादी होना चाहिए अभी. And Durvasa Muni then says okay, I will tell you the best thing. पुरुषोत्तम मंथ अभी आने वाला है, आप ये व्रत करो, 30 दिन का व्रत करना है, जबरदस्त हो जाएगा सब कुछ, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू डिजायर. बट दिस गर्ल ही सेड पुरुषोत्तम मंथ, ये तो मलमास है, इसका कोई तिथि नहीं होती, कुछ ये नहीं होती, आप मुझे ये ऐसे ज्ञान दे रहे हो. एंड देन शी वेंट इन क्रॉस विद दुर्वासा मुनि. नाउ इट इज सेड इफ यू हैव टू टेक पंगा, टेक विद एनीवन बट डोंट टेक पंगा विद दुर्वासा मुनि. So Durvasa Muni, being a good friend of Medhavi, he controlled his anger and he said, okay, you insulted me, no problem, मैं कोई श्राप नहीं दूंगा. But you insulted पुरुषोत्तम मंथ, that is beyond my control. श्राप तो मिलेगा, तुम कुरूप हो जाओगी, तुम जल्दी से बूढ़ी हो जाओगी. Okay? And anyway she was aged, she aged fast forward, बहुत ज़्यादा aged हो गई, पूरी काली बन गई, कुरूप हो गई, अभी तो और भी शादी नहीं हो सकती. And then she realized कि oh God, what have I done? Then she begged for forgiveness from Durvasa Muni. And then Durvasa Muni said, okay, देखो श्राप तो वापस नहीं ले सकता, हो गया. I will tell you a solution. जो है आशुतोष जी की प्रार्थना कीजिए, उनकी साधना कीजिए. Who is आशुतोष? Who is आशुतोष? आशुतोष इज लॉर्ड शिवा, हाँ, जो इजीली खुश हो जाते, इजीली मान जाते, आशुतोष. सो दिस गर्ल, शी डिड तपस्या फॉर 9000 years ऑफ आशुतोष, लॉर्ड आशुतोष, हाँ, 9000 years. कितना इजी ऑफर था. 30 days का करने को बोला था, वो नहीं किया, अभी 9000 years किया फॉर द सेम थिंग. वी आर नो डिफरेंट. इजीली बोलता हूँ ना कि अभी चैंटिंग करो सब हो जाएगा, बट नहीं, हम चैंटिंग नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे. अगर मैं बोलूँगा अभी ना इधर कि ऐसा है कि कल स्पेशल दिन है, रात को 3 बजे एक लोटा लेके ऐसा लेके खड़े होना है 10 मिनट, सब लोग करेंगे. 1-2 मंत्र उसके साथ अच्छे लगा के दूंगा ना, आई विल सेल इट टू यू 100%. आई एम टेलिंग यू, 9 out of 10 people here will do it. Okay, but I am saying simple thing. It is given in the Shastras. We just have to chant and we can go back to Godhead. And if we do that in this month, it was easy. But that girl did not understand this part. 9000 years she did. For whom? She wanted a husband. And after 9000 years, Shivji, when he came, कि मांगो पुत्री क्या चाहिए? So excited she was. हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए. 5 बार बोल दिया हस्बैंड चाहिए, तथास्तु. That girl became Draupadi. She did not want 5, but in her excitement she said 5 times, and Shivji said tathastu, and you will get 5, and she said no, I did not mean 5. Said no, you will get 5. That's what you asked for. You will get. I can't take it back. But how is this possible? How will I do it? I don't want 5. Okay, not in this life. Next life में मिलेंगे. So that is how we know of the entire story where Arjun does that bow arrow. He wins Draupadi
in that swayamvar. Then he comes home and Kunti Devi says jo bhi laye ho sab baat ke kha lo. So that is how this happened. Okay, so Draupadi had to suffer that entire humiliation from कौन था वो, नहीं दुर्योधन का भाई दुशासन, हाँ दुशासन, whatever that, you know, the sari thing, this episode, that episode, all that humility she had to go for that पुरुषोत्तम मंथ. ये पद्म पुराण में है, मैं अपने इसमें नहीं सुना रहा हूँ. It is all whatever I am speaking is from the Shastras. Okay, so she did not give enough respect for पुरुषोत्तम month. Imagine क्या हुआ उसके साथ. हाँ? We are in the same boat. We must give full respect. After listening this, your respect should be amplified. Okay, that we have to give full respect to this Purushottam month. Okay, so so Lord Krishna is telling this to the Pandavas कि ये हुआ. Okay, and now they understand. Then she says, okay, अभी और एक पुरुषोत्तम मंथ आने वाला है, एवरी 3 years एक आता है. अभी आने वाला है जो है ना, उसमें आप सब करो, आपको आपका किंगडम वापस मिल जाएगा. यू विल गेट ऑल ऑफ योर लॉस्ट ग्लोरी. So Draupadi and all the Pandavas, they follow the vrata and then they do it. Okay, and then later on they get everything back. Okay, so long story short, what we have to do now, चालू हो गया ये तो. Generally what people do is at the start of the month they will take a vrat. Okay, oh Lord Krishna, oh Lord Purushottam, in this month I am going to do this thing. You please help me follow my vrata, and then they will do it for the next 30 days. Okay. अभी अपना टाइम निकल गया है, बट नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू स्टिल हैव 3 days गए, तो लेट्स से इफ इट इज 30 day, तो यू स्टिल हैव 26-27 days. पंपर ऑफर अभी भी चालू है. देयर इज नो इश्यूज. यू कैन स्टिल टेक अ व्रता. से लॉर्ड, आई डिड नॉट नो दिस पार्थसारथी प्रभु केम टुडे ओनली आई गॉट दिस नॉलेज, सो यू प्लीज एक्सेप्ट माई व्रता फ्रॉम टुडे. लॉर्ड सब समझते हैं, कोई इश्यू नहीं है. वॉट वी कैन डू, ओके, in this month the easiest thing to do is chant. ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था 7-8 मिनट का एक राउंड, ऐसा कुछ लोग 16 राउंड करते हैं, कुछ लोग 32 राउंड्स करते हैं. तो जो कर्मा का घड़ा था और विकर्मा का और अकर्मा का घड़ा था, विकर्मा का घड़ा था, हम अकर्मा का घड़े को हमको भरना है. वी हैव टू फिल दैट पॉट ऑफ अकर्मा. ओके, ये बम्पर ऑफर है. कृष्णा हैज हिमसेल्फ सेड, गिवन दैट boon, anyone who does a vrata successfully, he will come to गोलोका धाम आफ्टर दिस वेरी लाइफ टाइम. फिक्स्ड है. अच्छा, गंगा में जब भी हम नहाते हैं ना, डुबकी मारते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं, है ना. हम कितने लोग देखते हैं कि गंगा में डुबकी मारते, बट किसी के पाप उनके धुलते नहीं. क्यों नहीं धुलते? मन साफ नहीं होता. नहीं, द सिंपल रूल इज, आप जाके गंगा में डुबकी लगाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे. ये शास्त्र में लिखा है. शास्त्र में जो लिखा है उसको डाउट नहीं करना, करेक्ट है, परफेक्ट है. बट फिर भी क्यों नहीं धुलते लोगों के पाप? गंगा में जो डुबकी लगा, हाँ सॉरी, बिकॉज दे डू इट अगेन. नहीं, बट उस मोमेंट के लिए तो धुल जाने चाहिए था ना. उस मोमेंट के जब डुबकी लगा के बाहर आ गया तो क्लीन स्लेट होना चाहिए था ना. Perfect. There is no faith in that rule for them. They don't have faith. So if you do something faithlessly, you will not get that result. अभी दवाई भी खा रहे हो, faithlessly खा रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं आएगा. और खाली गोली भी दी ना, नकली गोली भी दी कि इससे तुम्हारा सर दर्द ठीक होने वाला है, इसको बस 2 बार सुबह खाना, आफ्टर दिस. वो मन से खाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. राइट? Faith is the important factor. You must have faith in this entire Purushottam month process, otherwise it is not going to work for you. Anything spiritual, you need to have complete faith, full dedication, no doubt. Okay, so Purushottam month में क्या कर सकते हैं? Chant. You are all grihasthas, so I'm just going to give easy things, क्योंकि hard things भी है. I'll say everything what I can, and then you can choose what to do, and then tomorrow morning you can take a vrata. कि लॉर्ड पानी लेके, लॉर्ड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड देन यू फॉलो दैट व्रत. सो चैंटिंग कर सकते हैं. दे से दैट इफ यू गो टू अ होली प्लेस एंड टेक अ डिप इन द होली रिवर, इट इज लाइक
taking 1 million dips in Ganges. बट ये पुरुषोत्तम मंथ में अगर एक डिप लिया तो जैसे कुंभ मेला होता है ना, कुंभ मेला कभी आता है कितने सालों के बाद, उसमें कोई स्पेशल टाइम में जाके डिप लेना होता है, तो वो जो डिप लेते हैं ना उसका 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई एवरी डे यू विल गेट दैट थिंग इफ़ यू टेक अ बाथ इन होली रिवर. जिसके पास कैपेसिटी है वो चले जाए वृंदावन धाम, यमुना में करे, वो चले जाए गंजिस के पास, वहाँ पे डुबकी लगाए. अभी भी टिकट निकाल के जा सकते हैं. देयर इज़ नो वन स्टॉपिंग यू बिकॉज यू हैव गॉट दिस ऑल इन्फॉर्मेशन. इट इज सेड इन द शास्त्र. कोई भी होली रिवर में आप इस समय अगर डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट. ओके, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट. ओके, बट अभी होली रिवर तो हम सब नहीं जा सकते. तो क्या मंत्र मैंने बताया था, देर आर 7 होली रिवर्स. हाउ टू इन्वोक द 7 होली रिवर्स इन योर बेदिंग वाटर. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. 7 रिवर्स आ गए ना, 7 रिवर्स आ गए. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. वैसे पानी का जो अपना जो भी अगर ऐसे शावर में नहाते, बट चलो शावर में नहा रहे तो ऐसा करके वो मंत्रा बोल के डाल सकते अपने आप तक पानी लेके. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. Now this has becomes holy water now. You can take bath. So that is one. They say stay in धाम. मैं अभी वृंदावन से आया. I really wanted to like extend my stay by 4 days, but it was so difficult. So many things already pending here. So I just had to come back. Otherwise, I was like 4 days away from Purushottam Mass, and me and my wife were like really figuring out how to extend the stay, this, that, but it was just not possible. Okay. So if you can go to a dham and stay, very nice. If not, make this place a dham. Okay. So they say rise early. क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है ना. इतना इजी तो कृष्ण नहीं मिल सकता ना, इतना इजी मुक्ति नहीं मिलती. बट फिर भी बोला है कि 30 डेज में मिल सकती है. हाँ, सो जल्दी उठे. मंगला ब्रह्म मुहूर्त में उठे सुबह. जैसे आज सुबह मैं टेम्पल गया था. आई वॉज देयर एट बिकॉज आई हैड आरती सेवा. सो 4:30 आई वॉज देयर. द हॉल वॉज फुल. मेलबर्न में, इस्कॉन मेलबर्न में हॉल वॉज फुल ऑफ पीपल. मैनी यंगस्टर्स, दे वर ऑल चैंटिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे मतलब आज आखिरी दिन है जिंदगी का, वैसे चैंटिंग कर. मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम. मतलब वो इंटेंसिटी ना. आई वॉज फीलिंग सो नाइस कि अरे वाह कि क्या है. सो लास्ट फ्यू डेज आई एम गोइंग बिकॉज आई जस्ट केम बैक 4 days बैक एंड द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड गोइंग फॉर मंगला क्योंकि आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम. सो मतलब बाप रे. सो इवन व्हेन आई वॉज इन वृंदावन, हाँ, जो एटमॉस्फेयर स्पिरिचुअली चार्ज्ड है, जो लोगों में जो एक एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी के इससे, कि 4 o'clock को फर्स्ट आरती होते हैं वृंदावन में. बाय 3:45 देर इज नो स्पेस इन दैट आंगन टू स्टैंड. मंदिर में है ना, पूरा फुल हो जाता है. एवरीवन धोती कुर्ता, द लेडीज इन वॉट एवर देयर गोपी ड्रेसेस, एवरीवन नाइसली तैयार होके आ रहे कृष्ण के लिए. फुल्ली, ऐसा नहीं सुबह सुबह ऐसा करके आ रहे, ऐसा नहीं. प्रॉपरली सज धज के लेडीज आ रहे, प्रॉपरली एवरीथिंग प्रॉपरली एज यू. जैसे 1 घंटा भर जो लगता है वैसा करके आ रहे सब लोग. वो लाइक सो नाइस, सो स्पिरिचुअल फीलिंग. हाँ, एंड नो वंडर दे आर इन द धाम. ओके, एंड नो वंडर वी आर हियर इन दिस प्लेस. हाँ, सो चेंज हो सकता है हमारे जीवन में भी. वी हैव टू टेक स्टेप्स. ओके, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर. सो एवरी डे एक श्लोका रीड कर सकते हैं. एक 15 चैप्टर आता है भगवद गीता का, चैप्टर 15, उसके सिर्फ संस्कृत श्लोकास पढ़ सकते हैं. सो दीज थिंग्स कैन बी डन. एवरी डे तुलसी देवी को पूजा कर सकते हैं. एवरी डे यू मस्ट ऑफर लैम्प्स टू राधा कृष्णा. फोटो है ना राधा कृष्णा का. एवरी डे घी का दिया ले लेना, घी की बाती, घी डालना उसका असली घी, और उसका फिर, और वो लैंपिंग नहीं, सब लोग अपना अपना लैम्प. जैसे 4 लोग अगर घर में, हस्बैंड वाइफ 2 kids, all should have 4 lamps. They should stand in front together. They are offering. Everyone needs to have their own lamp. Okay. Every day you can offer morning, evening. You can do tulsi puja, do parikrama. On the weekends, visit temple. I'm saying to you on the weekends because you are all around here. So on the weekends, visit temple.
do tulsi pradakshina, because most of you may not have tulsi here. Okay, so you can also at least say तुलसी की प्रेयर्स बोल सकते हो. हाँ, तुलसी की आरती बोल सकते हो. तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः. और क्या है? राधा कृष्ण सेवा पाबो ए अभिलाषी. तुलसी देवी को हम प्रेयर्स क्या कर रहे हैं कि राधा कृष्ण की सेवा पावो यही मेरे अभिलाष है. तो तुलसी देवी, यू प्लीज फुलफिल, यू प्लीज एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ राधा कृष्ण. तुलसी का दूसरा नाम क्या है? वृंदा. वृंदावन जो है, इट इज फुल ऑफ तुलसीज. द प्रिसाइडिंग डीटी श्रीमती राधा रानी, बट द वन हु allocates task is Vrinda Devi. So if you want direct service to Radha Krishna, you have to beg to Tulsi Devi to give you service. So Tulsi Devi से आप प्रार्थना कर सकते हैं. So okay, can somebody repeat what all points I have covered? कि क्या क्या करना चाहिए? Chanting. Take a holy dip. Holy dip in holy river, or you can do it at home using the mantra. Yes, second. Stay in dham if you can, or make your home a dham. Yes. Fourth. Chapter 15 कर सकते हैं. Wake up in Brahma Muhurta. If you can do that austerity, जल्दी उठे, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो ऑब्वियसली क्रिकेट मैच तो नहीं देखेंगे, उठ के चैंटिंग करेंगे. जल्दी उठेंगे तो चैंटिंग करेंगे. हाँ, कि वही जो सुबह के टाइम में जो चैंटिंग होता है ना, बॉस बहुत ज़बरदस्त होता है. तो लोग कैसे करते हैं हमारे यहाँ चैंटिंग? 4:30 to 5 दे अटेंड द आरती, एंड देन 5 to 5:10, 5:15 से लेके 7 o'clock तक 1 hour 45 minutes में 16 राउंड्स खत्म करते हैं. 16 राउंड्स. ओके, नाउ फॉर यू ऑल, बिकॉज यू कांट कम टू द टेम्पल, आई अंडरस्टैंड. ओजस्वी प्रभु, ही कंडक्ट्स ऑनलाइन चैंटिंग सेशन एवरी डे मॉर्निंग. जूम सेशन होता है. आपको आपका फ़ोन सामने रखना पड़ेगा, कैमरा, उनका कंडीशन है कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, और फिर आप चैंटिंग कर सकते हैं. उसमें आपको बाकी लोग भी दिखेंगे जो चैंट कर रहे हैं, और आप भी अपना चैंटिंग करें. म्यूट करके कर दीजिए. दैट्स इट. सो यू विल गेट मोटिवेटेड दैट. हाँ, आई विल सेंड द लिंक इन अवर ग्रुप. एनीवन हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप हियर, सबके पास, यू आर नॉट पार्ट, देन यू कैन you see this Harsh Prabhu, can you open? Yeah, so anyone who wants to be part of the group can contact him. Okay, so every day morning that thing happens. Okay, तो पहले तो मैं इतना चैंटिंग भी इतना नहीं कर रहा था, बट अभी ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ना, अभी आई हैव टू लाइक रियली टेल यू दैट प्लीज टेक दिस ऑफर. दिस इज द नेक्स्ट 20 to 25 days आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ फॉर योर भक्ति. ओके, सो वो आप डायरेक्ट ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, सो ये कर सकते हैं. अच्छा, दान धर्म कर सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दान धर्म इन दिस. तो पुरुषोत्तम मास में अभी फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वाज देयर, हमने ना अभी खिचड़ी बांट रहे वृंदावन में. सारे जो भक्त लोग परिक्रमा लगाते हैं ना, वृंदावन में परिक्रमा लगती है, सो देन ऑल द भक्त विल गिव वाटर, विल गिव खिचड़ी, विल गिव समथिंग ऐसे. सो वी ऑल्सो गिव फॉडर टू द काउस. सो एक जर्मन माता जी है, उसका राधा कुंड गो सेवा करके एक काव सेवा है उसका. तो वहाँ पे बूढ़ी गायें हैं जो नॉट मिल्क प्रोडक्टिव, बट शी टेक्स केयर ऑफ देम. सो हम जब भी वहाँ थे तो हमने जो भी ट्रैक्टर भर के उधर चारा दिया, ये वो गया. सो यू कैन डू ऑल ऑफ दिस. वी ऑल्सो हैव यू कैन डोनेट टू अवर टेम्पल हियर इन इस्कॉन. वी ऑल्सो हैव अ गौशाला इन जीलोंग, सो यू कैन डोनेट देयर. समटाइम्स यू कैन टेक फ्रूट्स, केला वगैरह लेके, गुड़ लेके, यू कैन जस्ट मेक अ ट्रिप टू द जीलोंग, टू दैट हरे कृष्णा वैली इन अहेड ऑफ जीलोंग, और जाके काव को अपने हाथ से खिलाओ. पिकनिक भी हो जाएगा. नहीं, फ्रूट्स लेके जाओ. केले है, पतले पतले वाले छोटे छोटे कैरेट्स है. एप्पल भी खाते हैं, स्टिकर वगैरह निकाल के एप्पल खिलाओ. और गुड़ लेके जाओ. गुड़ लास्ट में खिलाना. हाँ, पहले गुड़ खा लो तो एप्पल नहीं खाएंगे फिर. हाँ, आई नो हाउ दिस है, बिकॉज आई बीन देयर मेनी टाइम्स. हाँ, तो गो सेवा कर सकते हैं. हाँ, ये कर सकते हैं. तो देर आर वेरियस थिंग्स पीपल डू. कोई ज़मीन पे सोता है. सम गृहस्थास दे फॉलो कंप्लीट ब्रह्मचर्य इन दिस केस, बिकॉज वी वॉन्ट ऑल आवर सेंसेस टू बी डेडिकेटेड टू द लॉर्ड एंड नॉट फॉर आवर पर्सनल एंजॉयमेंट, राइट? सो सम पीपल डू दैट. ओके, so you can make you can choose and
मैच वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट? बट चैंटिंग करें, चैंटिंग बहुत करें, जब भी मौका मिले चैंटिंग करें, और कम से कम एक भगवद गीता का एक श्लोका डेली तो पढ़ ही सकते हैं। एक श्लोका पढ़ने के लिए 15 सेकंड्स जाएंगे। हाँ करें। प्रभु जी, व्हेन यू आर रेडी यू लेट मी नो with whatever it is. In the meanwhile I'll continue, but if you We're almost ready. yeah just check and then you let me know, है ना? So very very important पुरुषोत्तम मंत्र। अच्छा, सबसे important चीज़, आप अपने घर में प्रोग्राम करा सकते हो। ISKCON Melbourne gives you a facility of free of cost that you contact them. I have sent a poster in our group. That poster, in the last line there is a contact number given of a Mataji. You call her and you tell कि मुझे मेरे घर में प्रोग्राम कराना है, हरि कथा कराना है, कीर्तन कराना है पुरुषोत्तम मंत्र में, then she will organize. So some devotees will come to your house and they will do it and that program will be conducted in your house. Okay, so ये करो, make your home a dham, because when devotees come and when they do that kirtan and you know that katha होगी आपके घर में, then you can do. So she will guide you, that Mataji will guide you, कब कराना है, क्या कराना है, आपका स्केड्यूल में क्या बैठता है, सुबह बैठता है, शाम को बैठता है, वो सब उसको बताओ, because we have a list of people who can do the program. They will mix and match and then they will send somebody to your house. All right. So yes, various things can be done, but these are the most important things that I can recollect at this stage. Okay. If there are any questions after this, then you can meet me during prasad and we can discuss. Okay. But be very very careful, very very careful with your intention. No criticizing the Purushottam Mass for whatever reason. If you don't want to follow, no problem, but don't think anything bad about the Mass. Okay, all right. Any questions? Haji, yes madam. So when we commit to take 30 days, of course women can't continuously do things for 30 days. You can chant, you can chant. We can chant. Yeah, you can chant. Nothing stops. The only thing that you can't do is direct deity worship. If you are in the temple, you can't do direct deity worship. Temple के deities के rules बहुत strict होते हैं. But if it is a home deity and if there is no other male member to continue the home deity, in that case you can still prepare भोगा. भगवान को तो भूखा नहीं कर सकते, हाँ? Suppose लड्डू गोपाल है आपके घर में, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा आपको, तो भोगा भी लगाना ही पड़ेगा. So basically there is nothing you can't do because you are in a home environment. Home के rules different है, temple के rules different है. So basically you can do everything for the next 30 days. Any other question? No questions. Yes. Onion garlic we will deal at another time. It is a more सात्विक है ना, जैसे there is a mode of goodness, passion, ignorance. तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी होते हैं, बट कुछ क्वालिटीज़ ऐसे हैं जो भक्ति से दूर रखते हैं. इसीलिए जब भी घर में पूजा होती है, हमारे पुराने टाइम में दादा दादी के समय के याद करें आप, जब भी पूजा में जो भी प्रसाद बनता था, कभी ओनियन गार्लिक नहीं होता था उसके अंदर. ऑन दैट डे एटलीस्ट वो कभी नहीं डालेंगे उसके अंदर. तो इट इज़ अ एंशिएंट परंपरा दैट इट इज़ अ सात्विक फूड. हमारे को सात्विक रहना है ना, इसके लिए सात्विक थॉट्स के लिए सात्विक आहार चाहिए. ऑनियन एंड गार्लिक विल मेक यू पैशनेट, उत्तेजित कर देता है. गार्लिक के अंदर पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ भी है हीलिंग की, बट वो उत्तेजित कर देता है, तो भक्ति नहीं आएगी उसमें. प्याज चबा के अब भक्ति नहीं कर सकते, मुंह से गंदी बदबू आएगी. सेम विथ गार्लिक. फील इट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ओके, बट दैट्स द लास्ट थिंग यू कैन वर्क ऑन एट दिस स्टेज. पहले वो करो, चैंटिंग करो, वो ऑटोमेटिक होगा. ऑल राइट. प्रभु जी किसका? व्हाट्स द नेम? शारदा. ओके.